I hope you all are fine and doing well. So dear students, I welcome you all in the next video tutorial of Pharmacognosy and Phytochemistry 1, that is BP405T. So dear students, in this video we are going to start chapter number 2, and the topic that we are having with us is cultivation, collection of the crude drugs of the natural origin. So start this topic, the cultivation and collection of the crude drugs, and of course the factor affecting the cultivation of the medicinal plants. As you can see the image, this is the cultivation. A farmer is doing the cultivation of crops. This photograph is related to the harvesting, that is the collection method. So let's see the definition. What is cultivation? It is a growing the plant by providing all form of the necessary requirements. So cultivation is nothing but it is the growing of the plant by providing all forms of the necessary requirements. And the cultivation ensures the quality and the purity of the plants of the medicinal importance. It gives higher yield of the crude drugs, and cultivation also helps in the application of new techniques like hybridization, mutation and polyploidy, which ultimately provides an improved quality of the crops. So why there is need of cultivation? Cultivation करने की क्या जरूरत है? To ensure the first point, remember one thing, to ensure the quality and the purity of the medicinal plant. That's why we have to need. इससे भी ज्यादा जरूरी cultivation क्यों है? There is increase in the herbal drug market. There is a boom of the herbal products. हर जगह पे herbal medicinal plants चाहिए, और मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से there is a simple principle of the demand and the supply. We have to supply that particular material also to the market. That's why we need to grow, we need to cultivate the medicinal plants, and we will focus upon the crude drugs. इस टॉपिक पे हमारा जो फोकस रहेगा वो कल्टीवेशन एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रूड ड्रग पे है. तो आई होप यू रिमेंबर अबाउट द क्रूड ड्रग्स नाउ, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन ऑफ द कल्टीवेशन. कल्टीवेशन का फायदा क्या है? इंश्योर द क्वालिटी एंड द प्यूरिटी. देन इट परमिट्स मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न मेथड्स. विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेशन हम मॉडर्न एप्लीकेशन मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे पॉलीप्लॉइडी एंड हाइब्रिडाइजेशन. वी विल डू इट in the later section. And it also ensure the regular supply of the crude drug. Very important. As I said, there is a huge demand of the herbal medicinal products or herbal medicinal plants. So उस demand को पूरा करने के लिए we have to supply the material also. So in other words, cultivation is a method of the crop planning. Yes. So collection of the crude drugs from the cultivated plants give a better yield and the therapeutic quality. Because why? The cultivated plants give a better yield and the therapeutic quality. Why? Because we can control the growth of the plant. Suppose करिए अगर प्लांट को कोई डिजीज होगी, और we can easily manipulate that, we can easily control that situation, we can treat our plant with the proper insecticides or pesticide, mostly of the natural origin, और हम उसको ठीक कर सकते हैं. लेकिन सपोज करिए आपने वाइल्ड से आप जंगल गए और वहां से आपने फॉरेस्ट से मेडिसिनल प्लांट्स को या किसी भी क्रूड ड्रग को कलेक्ट करने का सोचा, तो हो सकता है कि वहां पे कोई किसी तरह की म्यूटेशन या कोई ना कोई डिजीज हो प्लांट में. तो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, बट वी कैन कंट्रोल दैट इफ वी डूइंग द कल्टीवेशन प्रोसीजर. अगर हम उसको कल्टीवेट करें तो वो सब चीजें हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. तो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेथड ऑफ प्रोपगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपगेशन? इफ यू सी द जनरल मीनिंग ऑफ द प्रोपगेशन, और यू कैन सी द प्लांट प्रोपगेशन, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्लांट. प्रोपगेट करना मतलब नया प्लांट को आपने क्रिएट करना है, एंड देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोपगेशन आल्सो. One of the common method is the vegetative propagation. So what is this vegetative propagation? So vegetative propagation is also known as the asexual method of propagation. It is done by sowing various part of the plant in well prepared soil. अब इसमें हम प्लांट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उगाएंगे, कैसे प्रोपागेट करेंगे? कई प्लांट्स का हम बल्ब को प्रोपागेट करते हैं, बल्ब पार्ट. सिंपल दिमाग में रखिए प्याज, तो कई प्लांट्स को हम इस बल्ब के द्वारा प्रोपागेट किया जाता है. दिस इज द एसेक्सुअल मेथड और द वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपागेशन. सेकेंड वन इज द कॉरम पार्ट. तो बल्ब की तरह कई बार हम कॉरम पार्ट यूज करते हैं. तो एक चीज याद रखनी है, कॉरम है क्या? दीज आर दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेम्स. तो ये स्टेम की ही मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हमने कॉरम बोला है. जैसे बल्ब भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, तो हम कॉरम्स को भी यूज करते हैं कई प्लांट्स के, जैसे केसर की अगर आपने कल्टीवेशन करनी है
या कोल्चिकम की। कोल्चिकम भी एक प्लांट है, अगर इसको कल्टीवेट करना है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? कोरम पार्ट की हेल्प से। और बल्ब के केस में तो सिंपल लहसन और स्क्विल, दैट इज अनियन। तो दिस इज द प्लांट कोल्चिकम ऑटोमोनेले। आपको याद रखना है, ये प्लांट गाउट में यूज होता है, एंटी गाउट। तो कोल्चिसिन इसमें से कंपाउंड निकालते हैं, दैट इज यूज्ड एज ए एंटी गाउट। अब गाउट क्या है? डेपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द बोन्स। बोन्स में हमारा यूरिक एसिड क्रिस्टल की डेपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से गाउट बीमारी होती है, जिसको हम वो क्या बोलते हैं? हाइपर यूरिसीमिया, मतलब इंक्रीज इन द यूरिक एसिड लेवल इन द बॉडी, हाइपर यूरिसीमिया। नेक्स्ट, कई प्लांट्स को हम ट्यूबर के द्वारा कल्टीवेट करते हैं, जैसे जलप, एकोनाइट और पोटैटो। ये देखिए, जैसे आलू वगैरह है, उसे हम ट्यूबर्स के द्वारा कल्टीवेट करते हैं। और ये हमारी एक ड्रग है जो ट्यूबर के द्वारा कल्टीवेट की जाती है, जिसका नाम है, दिस इज नोन एज द जलप। इन द सेम वे राइजोम, जैसे हल्दी और अदरक, जिंजर एंड टर्मरिक, द रनर्स जैसे पेपरमिंट एंड सकर्स लाइक मिंट एंड पाइनएप्पल। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोपगेशन दैट इज अ वेजिटेटिव मेथड एंड आल्सो नोन एज द asexual method. And in the asexual method we also used following techniques like कटिंग करके, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। इन टेक्निक्स को यूज करके हम किसी भी प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हैं। कटिंग का अर्थ क्या है? सपोज करिए आपने कोई स्टेम पार्ट लिया, आपने उसको कट किया और उसको डायरेक्ट आपने सॉइल में डाल दिया, दैट्स नोन एज द कटिंग। सेकंड मेथड होता है ग्राफ्टिंग का। ये भी आपने कॉमनली देखा होगा रोजेस में या कई फ्रूट्स में, ये हम इस तरह से प्लांट्स को ग्राफ्ट करते हैं। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ द asexual plant propagation that joins plant parts from different plants together. सपोज करिए एक प्लांट है नाशपाती का, उस पे आपने दूसरे किसी प्लांट की कलम लगा दी, that is known as the grafting together so that they will heal and grow as a one plant. तो क्लोन प्रोड्यूस करने के लिए भी हम ग्राफ्टिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लेयरिंग का। इसे ध्यान से देखिए फिगर को, ये एक सिंपल लेयरिंग का कंसेप्ट है। Layering is a mean of the plant propagation in which a portion of an above ground stem grows roots while still attached to the parent plant and then detached as an independent plant. डायग्राम देखिए, सपोज ये एक प्लांट है, इसकी ब्रांचेस निकली यहां से स्टेम की, तो कई प्लांट्स में इसी स्टेम ब्रांच को हो यहां से ही हम इसको अंडरग्राउंड रूट्स में, अंडरग्राउंड जो इसकी यहाँ पे, इसको बेसिकली हम इसको सॉइल के अंदर दबा देंगे और यहां से इसकी रूट्स निकल जाएंगी। सपोज ये एक मेन प्लांट है, यहां से हमने क्या किया, इस प्लांट को, इसकी जो स्टेम है सॉइल में इसको दबा दिया और यहीं से इसकी रूट्स निकल गई। तो कुछ इस तरह का लेयरिंग का प्रोसीजर होता है। ये देखिए, सपोज ये प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है, ये हमने इसको यहाँ पे सॉइल के अंदर दबा दिया। अगर हम ऐसा नहीं भी करेंगे तो नेचर में इटसेल्फ ये प्रोसीजर होता है। नेचर अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करेगी, तो नेचर में ये प्रोसीजर चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नए प्लांट का जन्म यहीं से हो जाएगा, दैट इज नोन एज द लेयरिंग। नेक्स्ट है आपका बडिंग। इन बडिंग इट इज मॉडिफाइड ऑफ ग्राफ्टिंग इन विच ओनली अ बड इज इंसर्टेड इनटू द रूट स्टॉक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बड का मतलब क्या है। आई होप आप देख पा रहे हैं। तो ये जो पार्ट है प्लांट्स का, इसे हम बोलते हैं बड पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बड? अ बड इज एन अनडेवलप्ड, अभी अनडेवलप्ड है, और यू कैन से एम्ब्रियोनिक शूट एंड नॉर्मली अकर्स इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। लीफ पे हमें देखने को मिलता है, और द टिप ऑफ द स्टेम। ये देखिए, ये हो गया आपका टिप पे, एक स्टेम के टिप पे, और यहाँ पे एक्सिल, दिस इज द एक्सिल पार्ट ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं बड। तो यहां से आपका लीफलेट्स की ग्रोथ होती है, दैट्स नोन एज द बड पार्ट। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड किससे करेंगे प्रोपगेशन? सीड से। और सीड के अलावा जो भी मेथड्स होंगे वो क्या होंगे? असेक्सुअल वेजिटेटिव मेथड्स। ओके, तो सेक्सुअल मेथड्स में, इन द सेक्सुअल मेथड द प्लांट आर रेज्ड बाय प्रोपगेटिंग द सीड। प्लांट को सीड के द्वारा हम रेज करेंगे, उसको ग्रो करेंगे। एंड दीज प्लांट्स आर नोन एज द सीडलिंग्स। They should have high germination rate, and if the seeds have slow germination rate, then the special treatment can be given to the seed. कई बार क्या होता है, सीड्स को जर्मिनेट करवाने के लिए, ताकि वो जर्मिनेट जल्दी हो जाए, हम सीड्स को सोक करते हैं वाटर में 24 आवर्स के लिए, या फिर 0.2% जिब्रेलिक एसिड, ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, फॉर 48 आवर्स के लिए, ताकि प्लांट्स में से सीडलिंग निकल जाए और प्लांट जल्दी ग्रो कर पाए।
सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन। कल्टीवेशन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कल्टीवेशन को। लेट्स स्टार्ट। तो द कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिक्वायर प्रॉपर नॉलेज ऑफ द प्लांट हैबिटेट्स एंड द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर देयर फेवरेबल ग्रोथ। अब आप नारियल के पेड़ को आप हिमालय में ग्रो नहीं कर सकते। आपको हर एक चीज के बारे में ध्यान से देखना है, चाहे वो मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात करें, रेनफॉल, इरिगेशन, पेस्ट कंट्रोल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है? द फैक्टर विच आर गिवन स्पेशल अटेंशन फॉर द कल्टीवेशन आर लिस्टेड बिलो, लाइक altitude, temperature, humidity, rainfall, irrigation, soil fertility, fertilizer, pest and pest control। चलिए एक एक करके हर एक फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इज दी ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यस, ऑल्टीट्यूड। अब जैसे हमने एग्जांपल दिया, कोकोनट का पेड़ एक मीन सी लेवल, समुद्र तल की ऊंचाई के पास लगेगा। तो ऑल्टीट्यूड, और कई प्लांट्स जैसे हमने केसर के बारे में बात की कि केसर की खेती कहां पे होती है भारतवर्ष में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर जो हिमालय एक हायर ऑल्टीट्यूड पे जगह हमारे पास है, जो कि समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है। तो वहां के जो फ्लोरा और फोना, वहां के जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो अलग होंगे, और जो समुद्र तल के पास ऑल्टीट्यूड का एरिया होगा वहां पे फ्लोरा फोना अलग होगा और बीच वाले एरियाज में अलग होगा। तो द ऑल्टीट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। टी, सिंकोना एंड यूकेलिप्टस आर फेवरेबली ग्रो एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर। ये बोल रहा है कि टी, कॉफी और सिंकोना 1000 से 2000 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल पे ग्रो कर जाते हैं। चलिए देखिए चाय के बगान। तो सबसे पहले अगर हिमाचल की बात करें तो कांगड़ा पालमपुर का एरिया, और अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो दार्जिलिंग टी इज वेरी वेरी फेमस। तो दार्जिलिंग की देखिए समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 4042 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल, लगभग 2000 के करीब हम इसको मान सकते हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश में पालमपुर की बात की जाए तो 1220 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर यह स्थित है। तो उसी तरह से एग्जांपल्स दे रखे हैं। कैंफर आपने याद रखना है 1500 से 2000 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। सिनेमन, दालचीनी जिसको बोल रहे हैं, 250 से 1000 मीटर। कॉफी 1000 से 2000 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। ये कुछ एक एग्जांपल आप याद रखेंगे ऑल्टीट्यूड के केस में। तो हर एक प्लांट का ऑल्टीट्यूड कंडीशंस अलग अलग पे, ऑल्टीट्यूड पे अलग अलग प्लांट्स हमें मिलते हैं। एक प्लांट आपको दिखाना बहुत जरूरी है, कैम्फर जिसका नाम है सिनामोमम कैम्फोरा, जिससे हमें कपूर मिलता है, कैम्फर जिसको हम बोलते हैं। इसी की बात हो रही है, यस, जो हम पूजा सामग्री में भी, हवन में भी यूज करते हैं, कपूर। और ये रही हमारी दालचीनी जिसका नाम है सिनामन। चलिए अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करें। सो टेम्परेचर, yes, temperature is another important factor that plays a critical role in the growth of the medicinal and aromatic plants. Here are the few examples are given, like cinchona, it grows at a temperature of 60 to 75 degree Fahrenheit. ये Fahrenheit में दिया है, इसको याद रखें, ये डिग्री सेल्सियस में नहीं है। Coffee is grown at a temperature range of 55 to 70 degree Fahrenheit, and tea is grown at a temperature range of 70 to 90, whereas the cardamom is grown, lychee, as a cardamom 50 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कार्डमम ये रही छोटी इलायची एंड बड़ी इलायची, दोनों प्लांट अलग अलग हैं। इसका नाम है एलेटेरिया कार्डमम और ये है अमोमम कार्डमम। ओके, सो कैम्फर एंड कॉफी कैनॉट विथस्टैंड फ्रोस्ट। तो कई प्लांट पाले की मार नहीं झेल सकते, वेयरएज सैफरन नीड ओनली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। लेकिन कई प्लांट्स को सिर्फ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन ही चाहिए, जैसे केसर। ये देखिए, जस्ट सी द फोटोग्राफ, केसर कहां पे ग्रो कर रहा है, बर्फ के अंदर। तो ये कंडीशन जब तक केसर को नहीं मिलेगी, केसर की कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी। हमें उस अमाउंट में इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो हर प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेनफॉल एंड द इरिगेशन एक्सेप्ट द जीरोफिटिक प्लांट। अब ये जीरोफिटिक प्लांट्स क्या है, लाइक एलोए, अकेशिया, जस्ट सी हियर। तो इस तरह से कटीले प्लांट्स जो है, जिन्हें बहुत ही कम पानी चाहिए, जो हमें डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स। तो एक्सेप्ट जीरोफिटिक प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स नीड प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द इरिगेशन। जीरोफिटिक प्लांट्स को छोड़ के ज्यादातर प्लांट्स को इरिगेशन चाहिए प्रॉपर।
एंड इन केसेस वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल अति आवश्यक है उनकी ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट पैरामीटर इज सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी. सो yes, it is the most important natural resource as it support growth of all plants. Soil सबसे जरूरी है. Soil provides the mechanical strength as well as the water and the essential plant food elements required for the plant growth. Soil के से हमें सिर्फ plant को mechanical strength ही नहीं मिलती, लेकिन soil में natural जो macro and micro nutrients है वो भी plants की growth के लिए बहुत जरूरी है. तो what is soil fertility? Soil fertility को समझ लेते हैं अब. The capacity of the soil to supply plant nutrients in quantities and proportion and are required a suitable medium for the plant growth is known as the soil fertility. So soil fertile होना बहुत जरूरी है. अब what is soil? Soil consists of mineral matter, air, water and organic matter. ये आपने याद रखना है. Soil consists of mineral matter, air, water and organic matter. So depending upon the size of the mineral matter, following names are given to the soil. अब मिनरल मैटर का साइज के हिसाब से सॉइल्स को अलग अलग नाम दिए गए. जैसे हम बात करें, अगर मिनरल मैटर का साइज mm में दिया गया है लेस देन 0.002 हो तो उसको कौन सा सॉइल बोलेंगे? फाइन क्ले. फाइन क्ले. तो कुछ इस तरह का हमें दिखता है, फाइन क्ले. एंड इफ द पार्टिकल साइज इज बिटवीन 0.002 to 0.02 इट इज नोन एज द कोर्स क्ले. एंड इफ इट इज बिटवीन 0.02 to 0.2 इट इज नोन एज द फाइन सैंड. If it is between 0.2 to 2, it is known as the coarse sand. तो ये क्लासिफिकेशन दे रखी है बेसिकली आपकी based upon the size of the mineral matter. Soil are classified into 4 types: fine clay, coarse clay जिसको हम silt बोलते हैं, और fine sand और coarse sand. There is another classification depending on the percentage covered by the clay. अब soil के अंदर clay कितना परसेंट है उसके हिसाब से भी soil को क्लासिफाई किया गया है. जैसे कि if the clay percentage is more than 50% of clay, it is known as the clay soil. Okay, if the percentage of the clay is 30 to 50%, it is known as the loamy soil. Loamy. If the percentage of the clay is 20 to 30%, it is known as the silt loam. Okay, and if it is between 10 से 20% अगर clay हो तो उसको क्या बोलेंगे? sandy loam. और sandy soil कब होगा? if it is more than 70% sandy soil. और अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो इंडिया के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सॉइल हमें मिलते हैं. जैसे कि ये ब्राउनिश पोर्शन है दैट इज नोन एज फॉरेस्ट सॉइल. हमें काली मिट्टी को देखने को मिलती है. हमें ज्यादातर हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है कहां पे? गुजरात के कुछ एरियाज में, देन महाराष्ट्र. देन वी ऑल्सो फाइंड एलुवियल सॉइल. ये जो हमारे सबसे फर्टाइल सॉइल, हम एलुवियल सॉइल्स है हमारे पास बहुत ज्यादा. Then laterite soil, then we have लाल मिट्टी और येलो soil over here. Okay, ये वाला जो है हमारा लाल मिट्टी का एरिया रहेगा. एक बार फिर से ऑब्जर्व करिए, जैसा कि कई जंगल हैं तो हमारे पास फॉरेस्ट सोइल रहेगा. बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में. ओके, देन ये वाला सोइल आपने याद रखना है जो यूपी की बेल्ट है, यहां पे एलुवियल सोइल हमें देखने को मिलता है. देन हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है. वी ऑल्सो फाइंड लेटराइट सोइल, जहां पे जैसे साउथ इंडिया की अगर बात करें जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी और बारिश भी है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहां पे हमें लेटराइट टाइप ऑफ सोइल देखने को मिलता है. इतना आप याद रख लें. फिर हमें बीच बीच में रेड सोइल देखने को मिल रहा है. यहां पे फटाफट से देख लीजिए एलुवियल सोइल कहां पे हमें देखने को मिलता है. जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात. और बेसिकली रिच है पोटैश और लाइम में. काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ एरियाज आंध्रा के और तमिलनाडु के. और ये बहुत ज्यादा रिच है लाइम में, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, पोटैश में. देन लाल मिट्टी, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाल मिट्टी हमें देखने को मिलती है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. उड़ीसा में कुछ एरियाज, छत्तीसगढ़ के भी इसमें रहेंगे. और ये रिच होगी आयरन एंड पोटैश में. फिर लेटराइट सोइल, जैसे कि मैंने आपको बताया कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, यहां पे हमें लेटराइट सोइल देखने को मिलता है. एरिड और डेजर्ट सोइल, तो नेचुरल सी बात है, डेजर्ट कहां पे है भारतवर्ष में? राजस्थान में और नॉर्थ गुजरात में हमें देखने को मिलता है डेजर्ट सोइल. इन द सेम वे वी हैव सलाइन एंड अल्कलाइन सोइल. तो बोलने का मतलब क्या है? इंडिया हैज अ डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, और इंडिया में अलग अलग कंडीशंस हैं सॉइल की.
जिसकी वजह से हमें अलग अलग वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स और क्रॉप्स देखने को भी मिलते हैं। सो नेक्स्ट फैक्टर इज द फर्टिलाइजर्स। सो हमें ज्यादातर ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स, और बायो फर्टिलाइजर जिसे हम बोलते हैं, हमें वो यूज करने चाहिए। हमें कम से कम सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करने। फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल मैटर। प्लांट आर ऑल्सो इन नीड ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट फॉर सिंथेसाइजिंग वेरियस कंपाउंड, हमें पता है। एंड सम ऑफ देम आर नोन एज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, जो कि प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटीज, हेंस नोन एज द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए। Trace elements like copper, manganese, iron, molybdenum and zinc are also required for the plant growth, जिसको हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट्स कहा है। तो वो सब प्लांट्स को एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। एंड ईच एलिमेंट, हर एक, मैग्नीशियम का एक अलग रोल है प्लांट में, कैल्शियम का अलग रोल है, सल्फर का अलग है, आयरन, मोलिब्डेनियम, बोरोन का डिफरेंट डिफरेंट रोल है। तो ईच एलिमेंट हैज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। सो अगर उनकी कमी हो जाएगी तो डेफिशिएंसीज भी होंगी और सिम्टम्स भी आएंगे। इट्स डेफिशिएंसी इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन सिम्टम्स। सपोज करिए कई प्लांट के पत्ते पीले पड़ गए या पत्तों के अंदर खराब होने लगे, उनकी नेक्रोसिस, वो सड़ना स्टार्ट हो गए, तो वो हमें एक सिग्नल दे रहा है प्लांट कि उसके अंदर किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी है। जैसे नाइट्रोजन का रोल क्या है प्लांट में, प्रोटीन, प्रोटोप्लास्ट और एंजाइम्स के में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसी तरह से कॉपर रोल है एंजाइम, प्लांट में एंजाइम एक्टिवेशन का, क्लोरीन का रोल है फोटोसिंथेसिस में, जिंक का रोल है प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड एंजाइम एक्टिवेशन में। क्योंकि प्लांट्स में भी कई मैकेनिज्म चल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस, स्क्रैप साइकिल, ये सब प्लांट्स में चला, जहां पे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट प्लांट्स में होती है। तो अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो वी हैव बायोलॉजिकल ओरिजिन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर में जैसे यूरिया और पोटैश हम यूज करते हैं, लेकिन हमें कम से कम यूज करना चाहिए। तो हमें यूज क्या करना चाहिए, हमें नेचुरल मैन्योर्स यूज करने चाहिए और बायोलॉजिकल ओरिजिन के फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, जिसे हमने बायो फर्टिलाइजर बोल रहे हैं। जैसे कि मैन्योर्स कौन सी आ गई, खाद कौन सी आ गई, फार्म यार्ड मैन्योर, ये क्या है आपकी फार्म यार्ड मैन्योर। सेकंड इज द कंपोजिट मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर, ये रही आपकी कंपोस्ट मैन्योर और ग्रीन मैन्योर। आप लोगों को पता है, ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको हम केंचुआ खाद भी बोलते हैं, केंचुआ खाद। और ग्रीन मैन्योर आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से मुझे, तो ग्रीन मैन्योर का आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं, बताइए क्या होगा। यस, जो हम हरे पत्ते, हरी सब्जियों से खाद तैयार करेंगे उसे हमें ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। अब नेचुरल बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि लेगुमिनस क्रॉप्स में राइजोबियम सिम्बायोसिस होता है, एजोला साइनोबैक्टीरिया, ये हमारा एक नेचुरल बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। अब आपको याद रखना है, बायो का मतलब है लिविंग, मतलब बायो फर्टिलाइजर में कोई ना कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ही होगा। तो इट इज अ सब्सटेंस, बायो फर्टिलाइजर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच व्हेन अप्लाइड टू द सॉइल or you can say the seeds, it promotes the growth by increasing the supply of the nutrients to the host plant. अब एक कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा लेग्यूम्स का, जितने भी मटर वगैरह हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स है हमारी, दे आर एबल टू फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया राइजोबिया। तो लेग्यूम प्लस एक बैक्टीरिया के साथ उसका एक रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक का, जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबिया या राइजोबियम। तो दिस रिजल्ट ऑफ द सिम्बायोसिस इज टू फॉर्म नोड्यूल्स ऑन द प्लांट रूट, तो इसकी वजह से प्लांट्स पे गांठें बन जाएंगी, विद इन विच द बैक्टीरिया, उसके अंदर क्या होगा, एक बैक्टीरिया रहेगा विच कैन कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। क्योंकि प्लांट, अब एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, 70% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट को फिर भी हमें नाइट्रोजन सोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट वो N2 की फॉर्म में यूज नहीं कर सकता, तो प्लांट को कैसे यूज करेगा उस नाइट्रोजन को, रिड्यूस फॉर्म में। उस रिड्यूस करने का काम कौन करता है, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, राइजोबियम भी उनमें से एक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन में, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्ट तो आपको पता ही है क्या होता है, कोई भी अनडिजायर्ड एनिमल, हमें कोई भी अनडिजायर्ड ऑर्गेनिज्म हो सकता है। पेस्ट एक, यस, प्लांट भी हो सकता है, अगर वो हमें नहीं चाहिए प्लांट, सपोज हमने क्रॉप लगाई, हमने मेडिसिनल प्लांट लगाया सिनकोना, लेकिन सिनकोना के साथ कोई दूसरा प्लांट लग गया अबंडेंटली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेस्ट। चाहे वो नुकसानदायक हो या ना हो, हमारे लिए वो पेस्ट ही है, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। तो एनी अनडिजायर्ड एनिमल, वो एनिमल भी हो सकता है, जैसे रोडेंट हो सकते हैं, फंजाई, वायरसेस, इंसेक्ट, वीड्स, कुछ भी हो सकता है।
तो आपको याद रखना है पेस्ट के टाइप्स क्या हैं, जैसे फंजाई और वायरसेस हो सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स आपने सिंपल एग्जांपल याद रखें, जैसे फुसेरियम सोलानी, वेरी वेरी कॉमन पेस्ट, ये आपने जरूर देखा होगा। तो ये भी एक इंसेक्ट एज अ पेस्ट, ये पेस्ट है, किस कैटेगरी में आएगा, इंसेक्ट की कैटेगरी में। यस, ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, इट इज ऑल्सो अ पेस्ट, वेरी वेरी कॉमन। ये देखिए सारे पत्ते खा गया, क्या है ये, फ्ली बिटल, अगेन फाइटोमाइजा, वेरी वेरी कॉमन पेस्ट। तो पेस्ट आपके वीड्स भी हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स भी पेस्ट हो सकते हैं, जैसे रैगवीड या मेडिकन टी, येलो डॉक और पार्थीनियम। जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए अनडिजायर्ड, उसको हम क्या बोल देंगे, वीड्स। हियर इट इज, दिस इज द रैगवीड। अनदर एग्जांपल ऑफ द नॉन इंसेक्ट पेस्ट, कुछ एक वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, रोडेंट हो सकते हैं, ये सभी के सभी रोडेंट्स जो है ये सब एक पेस्ट का काम भी कर सकते हैं, ये पेस्ट भी हम इनको कंसिडर करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है ये कैसे कंट्रोल किया जाए, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ द पेस्ट कंट्रोल। तो जैसा पेस्ट वैसे हमने मेथड्स डेवलप किए, मतलब अगर आपको वीड्स को कंट्रोल करना है तो वी हैव डेवलप वीडिसाइड्स, अगर हमें हर्ब्स को कंट्रोल करना है तो हमने हर्बिसाइड बनाए। इफ वी हैव टू कंट्रोल द रोडेंट्स वी हैव डेवलप्ड रोडेंटिसाइड, इफ वी हैव कंट्रोल द इंसेक्ट वी हैव डेवलप्ड इंसेक्टिसाइड्स। ओके, सो इफ वी हैव टू डेवलप फंजाई, अगर फंजाई को कंट्रोल करना है तो वी हैव डेवलप्ड फंगिसाइड्स। तो जैसा पेस्ट वैसे हमने उसके मेथड्स बनाए, डेवलप किए उनको कंट्रोल करने के। सबसे कॉमन मेथड्स आएंगे जैसे कि मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट। तो उसमें मैकेनिकल मेथड्स में हम क्या करेंगे, पेस्ट को कैसे खत्म करेंगे, इट एम्प्लॉयज मैनुअल लेबर विद डिफरेंट मैकेनिकल डिवाइसेस हम इसमें यूज कर सकते हैं। हैंड पिकिंग करेंगे, प्रूनिंग, बर्निंग, ट्रैपिंग ऑफ द पेस्ट। आप देखिए एक पिंजरा है तो हम पेस्ट को ट्रैप कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द ट्रैपमेंट ऑफ द पेस्ट आल्सो। तो आपको याद रखना है मैकेनिकल मेथड्स में ब्रूनिंग, ट्रैपिंग ऑफ द पेस्ट आएगा। सेकंड इज द एग्रीकल्चर मेथड, सो इट ऑफर्स एडवांस क्रॉप ब्रीडिंग टेक्निक capable of inducing genetic manipulation resulting in the production of the pest resistant species। तो इसमें हम कुछ पेस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज का भी यूज करेंगे, जैसे कि कई हाइब्रिड वैरायटीज है, हम उनको ग्रो करवाएंगे ताकि उन पे माइक्रोबियल या पेस्ट का अटैक कम से कम हो। और आजकल तो हमने पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज भी डेवलप कर ली हैं मैक्सिमम प्लांट्स की। तो एग्रीकल्चर मेथड्स हम यूज करेंगे। अनदर अप्रोच इसमें क्या रहेगी, अनदर एस्पेक्ट इन द एग्रीकल्चर कंट्रोल इज द प्लॉइंग। हम प्लॉइंग करेंगे, एज यू कैन सी दिस इज द मेथड ऑफ प्लॉइंग। आजकल हम इसको ट्रैक्टर से करते हैं, तो इनसे भी हम रिमूव करेंगे पेस्ट, डीप प्लॉइंग करेंगे बेसिकली इसमें। नेक्स्ट मेथड है पेस्ट कंट्रोल का, वेरी इंटरेस्टिंग मेथड आल्सो, बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, पेस्ट को यूज करने के लिए हम सेक्स फेरोमोन्स का यूज करते हैं। अब ये सेक्स फेरोमोन्स क्या चीज है, तो दिस मेथड इज प्रैक्टिस बाय कॉम्बैटिंग द पेस्ट, मोस्टली द इंसेक्ट्स, ज्यादातर इंसेक्ट्स के लिए यूज करेंगे, विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। The chemical substances produced and released by some female insects are capable of eliciting a sexual response from the opposite sex. Suppose हमने ऐसे substances जिसको हमने सेक्स फेरोमोन दिया, सेक्स फेरोमोन नाम दिया गया, तो होता क्या है, सपोज एक एग्जांपल दे रखा है, कई इंसेक्ट्स के जैसे फीमेल इंसेक्ट्स में से हम सेक्स फेरोमोन्स को निकालेंगे या उनको हम यूज करते हैं ताकि जो मेल पेस्ट है, जो मेल इंसेक्ट है वो आकर्षित हो जाए, वो आ जाए और हम उसको ट्रैप करके फिर डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे सीधे इमेज इसमें भी हमने सेक्स फेरोमोन्स डाले हैं, ओके, और इसमें जैसे हमने फेरोमोन्स ऐड किए, जितने भी आपके इंसेक्ट थे अट्रैक्ट होने वाले वो अट्रैक्ट हो गए और इसमें इजीली ट्रैप कर लिया। नेक्स्ट मेथड इज द केमिकल कंट्रोल, जिसमें हम कुछ केमिकल्स यूज करेंगे, जैसे रोडेंट्स को मारने के लिए रोडेंटिसाइड, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड, एस्कैरिसिस के लिए एस्कैरिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड हर्ब्स के लिए हर्बिसाइड। एग्जांपल दे रखे हैं वारफेरिन, स्ट्रिक्निन, देन रेड स्क्विल में से लाल प्याज भी यूज करते हैं हम इसमें से रोडेंटिसाइड एक रोटिनोन कंपाउंड निकालते हैं रेड स्क्विल में से, जैसे दिस रोटिनोन पायरिथ्रिन। तो ये रोटिनोन कंपाउंड है, ये हमने लाल प्याज में से निकालते हैं। देन वेरी कॉमन एग्जांपल डीडीटी, पैराथायोन, मेलाथायोन, पायरिथ्रोइड्स, रोटिनॉइड्स, ये देखिए फिर से आ गया कार्बामेट। ये सारे एग्जांपल्स रहेंगे आपके इंसेक्टिसाइड्स के। इन द सेम वे टेट्राडाइफोन एग्जांपल रहेगा एस्कैरिसाइड्स का। देन फंगिसाइड्स में एग्जांपल आएंगे बोर्डेक्स मिक्सचर, वेरी वेरी कॉमन, दिस इज अ बोर्डेक्स मिक्सचर, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड 5 molecules of water. We can also use different antibiotics, quaternary ammonium compounds also. An example of the herbicides are 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, calcium arsenate, etc. So far we have completed cultivation procedure, cultivation practices and the factor affecting cultivation of the medicinal plant.
सो लेट्स स्टार्ट द कलेक्शन प्रोसीजर. कलेक्शन ऑफ द ड्रग्स ऑफ द नेचुरल ओरिजिन. तो ड्रग को कलेक्ट कब करना चाहिए? जब ड्रग के अंदर मैक्सिमम केमिकल कंपाउंड्स हो, irrespective of the type of the crude drug and the area of the collection. Drugs are collected suitably when they contain maximum concentration of the active constituents. हो सकता है आपने कोई प्लांट ग्रो किया, फेवरेबल कंडीशन उसको नहीं मिली, सपोज करिए रेनफॉल नहीं हुआ, तो अगर उसका क्रॉप का टाइम बताया गया, उस मेडिसिनल प्लांट का टाइम बताया गया है अक्टूबर में कलेक्ट करने का, अक्टूबर 15 सपोज 15 टू मिड अक्टूबर, दैट इज अक्टूबर 15, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने अक्टूबर 15 में उसको कलेक्ट करना है. अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है तो यू कैन मेड दिस, जो हार्वेस्टिंग टाइम है, कलेक्शन टाइम है, उसको आपको फ्लेक्सिबल रखना है और वो आपको ऑब्जर्व करना है कि जब आपके प्लांट में मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो, देन यू हैव टू कलेक्ट योर पर्टिकुलर क्रूड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. सर एग्जांपल दे रखे हैं, से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द लीफ एंड द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द प्लांट. ज्यादातर जो क्रूड ड्रग्स जो हम लीफ ऑब्टेन करते हैं जिन ड्रग्स का, या जिन ड्रग्स का फ्लावरिंग टॉप्स यूज करते हैं, जे जस्ट कलेक्टेड बिफोर दे रीच द फ्लावरिंग स्टेज मैच्योरिटी. फॉर एग्जांपल सेना, तो सेना को कब कलेक्ट करेंगे? कलेक्टेड जस्ट बिफोर दे रीच देयर फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले हम उसको कलेक्ट कर लेंगे. ओके, डिजिटालिस, विनका एंड बेलोडोना एक्सेट्रा. सेकंड एग्जांपल देखिए, लीव्स ऑफ एलोए. एलोए के लीव्स कब कलेक्ट करेंगे? व्हेन दे आर सफिशिएंटली थिक. अब एलोवेरा के लीव्स जब थिक हो जाए तभी आपको उसको कलेक्ट करना है. देन फ्लावर्स जस्ट बिफोर पॉलिनेशन और बिफोर देयर फुल एक्सपेंशन. फॉर एग्जांपल सैफरन, तो सैफरन के केस में इसको हम पॉलिनेशन से या फुल एक्सपेंशन से पहले ही इसको कलेक्ट करेंगे, सैफरन को, केसर को. और इवन क्लव बर्ड्स. अगर लौंग की बात करें तो ये लौंग का एक प्लांट है, जैसे ये लौंग का हम क्या पार्ट यूज करते हैं? फ्लावर बड. तो हमें इसको बड स्टेज में ही कलेक्ट करना है. अगर ये एक्सपैंड हो गया, फ्लावर बन गया, तब ये हमारे किसी काम का नहीं. ओके, एज अ ड्रग हमें इसे इसी स्टेज पे कलेक्ट करना है जब ये बडिंग स्टेज पे हो. फ्लावर बड जिसको हम बोलते हैं, पार्ट यूज किसका? क्लव का. और ये आपका सैफरन का फ्लावर है, केसर का फ्लावर. तो केसर में हम ये पार्ट यूज करते हैं इसका, जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं. जैसे जनरल कंडीशन दी है, दे आर कलेक्टेड इन द ड्राई वेदर एंड प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग आवर. सुबह सुबह हम इसको कलेक्ट करेंगे, अर्ली मॉर्निंग्स में. बार्क्स को कलेक्ट करने का, छाल को कलेक्ट करने का सही समय क्या है? कलेक्टेड इन द स्प्रिंग और अर्ली समर. स्प्रिंग का मतलब क्या है? बसंत का मौसम जब आया है, जब कैम्बियम इज एक्टिव. तो बार्क में कैम्बियम जब एक्टिव हो तभी हमें इसको कलेक्ट करना है, बिकॉज उस समय पे वो बहुत ही आसान है उसको डिटैच करना स्टेम से. ये देखिए बार्क की कुछ लेयर्स हैं, तो इस वाली लेयर को हम बोलेंगे कैम्बियम. तो इस समय पे ये बसंत पे कैम्बियम एक्टिव होती है, हम इसको इजीली कलेक्ट कर सकते हैं. किसे? बार्क को, व्हेन द कैम्बियम इज एक्टिव. इन द सेम वे एग्जांपल्स दे रखे हैं. लेकिन कुछ बार्क्स जो है, समटाइम्स दे आर कलेक्टेड इन ऑटम आल्सो. जैसे वाइल्ड चेरी की बार्क को हम ऑटम सीजन में कलेक्ट करते हैं. ऑटम का मतलब क्या है? शरद ऋतु के समय पे इसे हम कलेक्ट करेंगे. देन द रूट्स. ओके, एक फ्रूट्स के एग्जांपल देख लेते हैं. कलेक्शन ऑफ द फ्रूट डिपेंडिंग अपॉन द फ्रूट्स यूज. दे आर कलेक्टेड आइदर राइप और हाफ राइप. कई फ्रूट्स को हम पूरा पका हुआ यूज करते हैं, कईयों को हाफ राइप. जैसे आंवला की बात करें तो आंवले को हम हमेशा जब वो ग्रीन कलर का हो जाए तब हमें उसे कलेक्ट करना है. वो पूरा पका हुआ जब होगा आंवला, तो वो बिल्कुल रेड कलर का या डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब उसे कलेक्ट नहीं करना है. उससे पहले उसको कलेक्ट करना पड़ेगा हमें जब वो अपनी ग्रीनिश स्टेज पे पहुंच जाए. दिस इज आंवला फ्रूट. एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन. कार्डामम. Fruits are collected just before they reach dehiscence. तो cardamom. Then example is bale and tamarind. इमली और बेल should be collected after their full maturity. Full maturity के बाद ही उसको collect करना है ताकि पूरा पक जाए. और fennel, coriander are collected when they are fully ripened. Next example is the roots. तो जड़ को collect करने का समय, सही समय क्या है? Roots को collected in the spring before the vegetative process stops. तो बसंत के मौसम में हम इसको कलेक्ट करेंगे. देन राइजोम्स आर कलेक्टेड व्हेन दे आर स्टोर एम्पल रिजर्व फूड मटेरियल. जब राइजोम को कब कलेक्ट करना है? जब उसके अंदर हमें लगे कि पूरा रिजर्व फूड मटेरियल इजीली उसमें बन जाए. देन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग तो आपको पता ही है, कट लगा के इंसाइज करके हम कलेक्ट करेंगे. तो दे आर कलेक्टेड एज सून एज दे आर ओजीड आउट फ्रॉम द प्लांट. अकेशिया गम इज कलेक्टेड 2 to 3 वीक आफ्टर मेकिंग इंसिजन. अकेशिया पेड़ पे कट लगाएंगे और 2 से 3 हफ्ते बाद उसको हम कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे व्हेन इट इज सफिशिएंटली हार्ड. Opium, afim or papaya latexes are collected after coagulation of the latex. Then example is also given. Turpentine, oleoresin and balsam of Peru are collected when the plant is about 8 से 10 years old. Here it is, example is given. ये देखिए
इसको कट लगा के हम इस गोंद को इकट्ठा करेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब सपोज करिए आपने बार कलेक्ट करनी है, किसी भी प्लांट की छाल कलेक्ट करने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे फेलिंग, सबसे इनकन्वीनियंट, सबसे बेकार मेथड जैसे हम बोल सकते हैं फेलिंग, मतलब ट्री को पूरा बेस से कट करके बाहर निकालना, ठीक नहीं। द ट्री इज कट एट द बेस एंड द बार्क इज पील्ड आउट। नो। अपरूटिंग, रूट्स आर डग, रूट्स को पूरा का पूरा अपरूट कर देना, नहीं, ये मेथड हम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज द कॉपिसिंग। इन दिस द प्लांट इज अलाउड टू ग्रो फॉर अ डेफिनेट पीरियड एंड देन इट इज कट ऑफ एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द सॉइल। इसमें प्लांट को हम ग्रो करने देंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, देन उसको ग्रो करने के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसको कट लगा के हम प्लांट को उसमें से बाहर कलेक्ट कर लेंगे। जस्ट सी द फोटोग्राफ। देखिए इसमें हम पेड़ काट दिया है, लेकिन पेड़ हमने जड़ से नहीं निकाला है, ऊपर वाला पोर्शन निकाल दिया पेड़ का, ताकि उसमें से हम कलेक्शन कर सकें बार्क की। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर ग्रोथ आ जाएगी, बिकॉज रूट्स रिमेन सस्टेन्ड। जैसे ये कुछ देर बाद इसी प्लांट में से, इसी ट्री में से ग्रोथ आना स्टार्ट होगी, और कुछ ही समय में ये पेड़ फिर से एक प्लांट, एक ट्री बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बार कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड। नेक्स्ट इज द हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्ट कब करना है, हर एक चीज को कलेक्ट करने का अलग अलग हार्वेस्टिंग टाइम है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है डिजिटलिस, टी, विनका और सेना, इनको कब हार्वेस्टिंग, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, व्हेन हार्वेस्टिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर मींस। अब देखिए चाय, अब चाय को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है इंडिया में, चाय की कलेक्शन के लिए चाय पत्तियों को कैसे करते हैं, मैनुअल लेबर लगा के हैंड पिकिंग की जाती है, लेकिन इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन इसका एक फायदा भी है, लेबर इंटेंसिव। भारतवर्ष में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर इतने ज्यादा लोगों को हम अगर इस काम में लगा देंगे तो कम से कम लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके, तो ये देखते हुए हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, हमें टेक्नोलॉजी का ओवर यूज नहीं करना है। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाए और मैन पावर जीरो हो जाए। तो हमें टेक्नोलॉजी को में मैन पावर को इन्वॉल्व जरूर करना है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ये देखिए, तो हम इस तरह से हैंड पिकिंग करके ही टी को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें लीफलेट्स को कलेक्ट करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा टिपिकल प्रोसीजर है। अगर हम मशीनरी ज्यादा यूज करेंगे तो उसमें हो सकता है कि हमारा मटेरियल भी खराब हो जाए। कई जगह पे हम मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे रूट्स को निकालने के लिए, राइजोम को निकालने के लिए, ट्यूबर्स को निकालने के लिए सॉइल में से हमें डिगर्स और लिफ्टर का यूज करना पड़ता है। तो आप देख ही रहे हैं, दिस इज डिगर, ये होल बना देगा, जिसकी वजह से हम देन अपना ड्रग को जो अंडरग्राउंड है सॉइल के अंदर इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। देन ट्यूबर्स और रूट को हमें जब भी कलेक्ट करना है, हमें उसको थॉरोली वॉश देना है, ताकि उसमें से जितनी भी कंटेमिनेशन है वो निकल जाए, क्योंकि वो अंडरग्राउंड ड्रग है, उसमें सॉइल की कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। देन कई बार हम फ्लावर्स के लिए, सीड के लिए कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे सीड स्ट्रिपर। तो जैसे सपोज एग्जांपल दे रखा है कॉटन स्ट्रिपर, ये कॉटन की हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, जिससे हम बोलते हैं कॉटन स्ट्रिपर। तो वैसे ही हम क्रूड ड्रग्स में भी अलग अलग तरह के स्ट्रिपर्स यूज करते हैं उनकी हार्वेस्टिंग करने के लिए। कई क्रूड ड्रग्स को, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल देखते हैं सीवीड्स का। सीवीड्स जो कि समुद्र के किनारे शैलो एरियाज में हमें मिलता है, किनारे किनारे पे, तो लॉन्ग हैंडेड फॉक यूज करते हैं। इन द सेम वे मोवर्स यूज करेंगे पेपरमिंट और स्पेयरमिंट के लिए, या जस्ट लाइक घास काटने वाली मशीन आपने देखी है, तो पेपरमिंट स्पेयरमिंट्स के लिए हम इसको हम क्या बोलेंगे, मोवर्स, MOWERS। देन पेपरमिंट हो गया, स्पेयरमिंट हो गया। देन फेनल, कोरिएंडर, धनिया, सौंफ, कैरावे के लिए, इनके फ्रूट्स अलग करने के लिए हम इसको थ्रेशिंग करेंगे और बीट करेंगे फ्रूट्स को विनोइंग से, छान लेंगे इसको बेसिकली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक हार्वेस्टिंग के बाद आपने एक और पॉइंट याद रखना है, ड्राइंग का। अब सुखाने के भी अलग अलग मेथड्स हैं क्रूड ड्रग्स को। 2 मेथड यूज करेंगे हम, एक तो सिंपल नेचुरल मेथड, जिसमें कि सन ड्राइंग, या तो धूप में सुखाएंगे या तो शेड में सुखाएंगे, छाया में। और आर्टिफिशियल मेथड्स में हम ड्रायर यूज करते हैं, जैसे अलग अलग तरह के ड्रायर्स हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर और स्प्रे ड्रायर्स। So far we have completed cultivation procedure, cultivation practices, and the factor affecting cultivation of the medicinal plant. So let's start the collection procedure, collection of the drugs of the natural origin. तो ड्रग को कलेक्ट कब करना चाहिए, जब ड्रग के अंदर मैक्सिमम केमिकल कंपाउंड्स हो, irrespective of the type of the crude drug and the area of the collection. Drugs are collected suitably when they contain maximum concentration of the active constituents. हो सकता है आपने कोई प्लांट ग्रो किया, फेवरेबल कंडीशन उसको नहीं मिली, सपोज करिए रेनफॉल नहीं हुआ,
तो अगर उसका क्रॉप का टाइम बताया गया, उस मेडिसिनल प्लांट का टाइम बताया गया है अक्टूबर में कलेक्ट करने का, अक्टूबर 15 सपोज 15 टू मिड अक्टूबर, दैट इज अक्टूबर 15, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने अक्टूबर 15 में उसको कलेक्ट करना है। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है तो यू कैन मेड दिस, जो हार्वेस्टिंग टाइम है, कलेक्शन टाइम है, उसको आपको फ्लेक्सिबल रखना है और वो आपको ऑब्जर्व करना है कि जब आपके प्लांट में मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो, देन यू हैव टू कलेक्ट योर पर्टिकुलर क्रूड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। सर एग्जांपल दे रखे हैं, से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द लीफ एंड द फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द प्लांट, ज्यादातर जो क्रूड ड्रग्स जो हम लीफ ऑब्टेन करते हैं जिन ड्रग्स का, या जिन ड्रग्स का फ्लावरिंग टॉप्स यूज करते हैं, जे जस्ट कलेक्टेड बिफोर दे रीच द फ्लावरिंग स्टेज मैच्योरिटी। फॉर एग्जांपल सेना, तो सेना को कब कलेक्ट करेंगे? कलेक्टेड जस्ट बिफोर दे रीच देयर फ्लावरिंग स्टेज, से जस्ट पहले हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। ओके, डिजिटालिस, विनका एंड बेलोडोना एक्सेट्रा। सेकंड एग्जांपल देखिए, लीव्स ऑफ एलोए, एलोए के लीव्स कब कलेक्ट करेंगे? व्हेन दे आर सफिशिएंटली थिक। अब एलोवेरा के लीव्स जब थिक हो जाए तभी आपको उसको कलेक्ट करना है। देन फ्लावर्स जस्ट बिफोर पॉलिनेशन और बिफोर देयर फुल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल सैफरन, तो सैफरन के केस में इसको हम पॉलिनेशन से या फुल एक्सपेंशन से पहले ही इसको कलेक्ट करेंगे, सैफरन को, केसर को। और इवन क्लव बर्ड्स। अगर लौंग की बात करें तो ये लौंग का एक प्लांट है, जैसे ये लौंग का हम क्या पार्ट यूज करते हैं, फ्लावर बड, तो हमें इसको बड स्टेज में ही कलेक्ट करना है। अगर ये एक्सपैंड हो गया, फ्लावर बन गया, तब ये हमारे किसी काम का नहीं। ओके, एज अ ड्रग हमें इसे इसी स्टेज पे कलेक्ट करना है जब ये बडिंग स्टेज पे हो, फ्लावर बड जिसको हम बोलते हैं, पार्ट यूज किसका? क्लव का। और ये आपका सैफरन का फ्लावर है, केसर का फ्लावर। तो केसर में हम ये पार्ट यूज करते हैं इसका, जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। जैसे जनरल कंडीशन दी है, दे आर कलेक्टेड इन द ड्राई वेदर एंड प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग आवर, सुबह सुबह हम इसको कलेक्ट करेंगे, अर्ली मॉर्निंग्स में। बार्क्स को कलेक्ट करने का, छाल को कलेक्ट करने का सही समय क्या है? कलेक्टेड इन द स्प्रिंग और अर्ली समर। स्प्रिंग का मतलब क्या है? बसंत का मौसम जब आ जाए, जब कैम्बियम इज एक्टिव, तो बार्क में कैम्बियम जब एक्टिव हो तभी हमें इसको कलेक्ट करना है, बिकॉज उस समय पे वो बहुत ही आसान है उसको डिटैच करना स्टेम से। ये देखिए बार्क की कुछ लेयर्स हैं, तो इस वाली लेयर को हम बोलेंगे कैम्बियम। तो इस समय पे ये बसंत पे कैम्बियम एक्टिव होती है, हम इसको इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, किसे? बार्क को, व्हेन द कैम्बियम इज एक्टिव। इन द सेम वे एग्जांपल्स दे रखे हैं, लेकिन कुछ बार्क जो है समटाइम्स दे आर कलेक्टेड इन ऑटम आल्सो। जैसे वाइल्ड चेरी की बार्क को हम ऑटम सीजन में कलेक्ट करते हैं। ऑटम का मतलब क्या है? शरद ऋतु के समय पे इसे हम कलेक्ट करेंगे। देन द रूट्स, ओके, एक फ्रूट्स के एग्जांपल देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ द फ्रूट डिपेंडिंग अपॉन द फ्रूट्स यूज, दे आर कलेक्टेड आइदर राइप और हाफ राइप। कई फ्रूट्स को हम पूरा पका हुआ यूज करते हैं, कईयों को हाफ राइप। जैसे आंवला की बात करें तो आंवले को हम हमेशा जब वो ग्रीन कलर का हो जाए तब हमें उसे कलेक्ट करना है। वो पूरा पका हुआ जब होगा आंवला, तो वो बिल्कुल रेड कलर का या डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब उसे कलेक्ट नहीं करना है। उससे पहले उसको कलेक्ट करना पड़ेगा हमें, जब वो अपनी ग्रीनी स्टेज पे पहुंच जाए। दिस इज आंवला फ्रूट। Examples are also given. Cardamom fruits are collected just before they reach dehiscence. So cardamom. Then example is bale and tamarind, imli or bale should be collected after their full maturity. Full maturity के बाद ही उसको collect करना है ताकि पूरा पक जाए। और fennel, coriander are collected when they are fully ripened. Next example is the roots. तो जड़ को कलेक्ट करने का समय, सही समय क्या है? रूट्स को collected in the spring बिफोर द वेजिटेटिव प्रोसेस स्टॉप्स। तो बसंत के मौसम में हम इसको कलेक्ट करेंगे। देन राइजोम्स आर कलेक्टेड व्हेन दे आर स्टोर एम्पल रिजर्व फूड मटेरियल। जब राइजोम को कब कलेक्ट करना है? जब उसके अंदर हमें लगे कि पूरा रिजर्व फूड मटेरियल इजिली उसमें बन जाए। देन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग तो आपको पता ही है, कट लगा के इंसाइज करके हम कलेक्ट करेंगे, तो दे आर कलेक्टेड एज सून एज दे आर ओजीड आउट फ्रॉम द प्लांट। अकेशिया गम इज कलेक्टेड 2 to 3 वीक आफ्टर मेकिंग कंसीजन। एकेशिया पेड़ पे कट लगाएंगे और 2 से 3 हफ्ते बाद उसको हम कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, व्हेन इट इज सफिशिएंटली हार्ड। ओपियम, अफीम और पपाया लेटेक्सेस आर कलेक्टेड आफ्टर कोगुलेशन ऑफ द लेटेक्स। देन एग्जांपल इज आल्सो गिवन, टर्पेंटाइन, ओलियोरेजिन एंड बाल्सम ऑफ पेरू आर कलेक्टेड व्हेन द प्लांट इज अबाउट 8 से 10 इयर्स ओल्ड। हियर इट इज, एग्जांपल इज गिवन। ये देखिए, इसको कट लगा के हम इस गोंद को इकट्ठा करेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब सपोज करिए आपने बार्क कलेक्ट करनी है, किसी भी प्लांट की छाल कलेक्ट करने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे फेलिंग, सबसे इनकन्वीनियंट, सबसे बेकार मेथड जिसे हम बोल सकते हैं फेलिंग, मतलब ट्री को पूरा बेस से कट करके बाहर निकालना, ठीक नहीं। द ट्री इज कट एट द बेस एंड द बार्क इज
peeled out. Now uprooting, roots are dug, roots को पूरा का पूरा uproot कर देना, नहीं, ये मेथड हम यूज करेंगे, that is known as the coppicing. In this the plant is allowed to grow for a definite period and then it is cut off at a specific distance from the soil. इसमें प्लांट को हम ग्रो करने देंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, देन उसको ग्रो करने के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसको कट लगा के हम प्लांट को उसमें से बाहर कलेक्ट कर लेंगे. जस्ट सी द फोटोग्राफ. देखिए इसमें हम पेड़ काट दिया है, लेकिन पेड़ हमने जड़ से नहीं निकाला है, ऊपर वाला पोर्शन निकाल दिया पेड़ का ताकि उसमें से हम कलेक्शन कर सकें बार्क की. और कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर ग्रोथ आ जाएगी बिकॉज रूट्स रिमेन सस्टेन्ड. जैसे ये कुछ देर बाद इसी प्लांट में से, इसी ट्री में से ग्रोथ आना स्टार्ट होगी और कुछ ही समय में ये पेड़ फिर से एक प्लांट, एक ट्री बन जाएगा. तो ये आपको याद रखना है, बार्क कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड है. नेक्स्ट इज द हार्वेस्टिंग. तो हार्वेस्ट कब करना है, हर एक चीज को कलेक्ट करने का अलग अलग हार्वेस्टिंग टाइम है. जैसे कि एग्जांपल दे रखा है डिजिटलिस, टी, विनका और सेना. इनको कब हार्वेस्टिंग, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, व्हेन हार्वेस्टिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर मींस. अब देखिए चाय, अब चाय को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है इंडिया में. चाय की कलेक्शन के लिए चाय पत्तियों को कैसे करते हैं, मैनुअल लेबर लगा के हैंड पिकिंग की जाती है. लेकिन इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन इसका एक फायदा भी है, लेबर इंटेंसिव. भारतवर्ष में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर इतने ज्यादा लोगों को हम अगर इस काम में लगा देंगे तो कम से कम लोगों को रोजगार मिलेगा. ओके, तो ये देखते हुए हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, हमें टेक्नोलॉजी का ओवर यूज नहीं करना है. ऐसा ना हो कि हम सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाए और मैन पावर जीरो हो जाए. तो हमें टेक्नोलॉजी को में मैन पावर को इन्वॉल्व जरूर करना है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके. ये देखिए, तो हम इस तरह से हैंड पिकिंग करके ही टी को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें लीफलेट्स को कलेक्ट करना पड़ता है. बहुत ही ज्यादा टिपिकल प्रोसीजर है. अगर हम मशीनरी ज्यादा यूज करेंगे तो उसमें हो सकता है कि हमारा मटेरियल भी खराब हो जाए. कई जगह पे हम मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे रूट्स को निकालने के लिए, राइजोम को निकालने के लिए, ट्यूबर्स को निकालने के लिए सॉइल में से हमें डिगर्स और लिफ्टर का यूज करना पड़ता है. तो आप देख ही रहे हैं, दिस इज डिगर, ये होल बना देगा जिसकी वजह से हम देन अपना ड्रग को जो अंडरग्राउंड है सॉइल के अंदर इजीली कलेक्ट कर सकते हैं. देन ट्यूबर्स और रूट को हमें जब भी कलेक्ट करना है, हमें उसको थॉरोली वॉश देना है ताकि उसमें से जितनी भी कंटेमिनेशन है वो निकल जाए, क्योंकि वो अंडरग्राउंड ड्रग है, उसमें सॉइल की कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है. देन कई बार हम फ्लावर्स के लिए, सीड के लिए कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे सीड स्ट्रिपर. तो जैसे सपोज एग्जांपल दे रखा है कॉटन स्ट्रिपर, ये कॉटन की हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, जिससे हम बोलते हैं कॉटन स्ट्रिपर. तो वैसे ही हम क्रूड ड्रग्स में भी अलग अलग तरह के स्ट्रिपर्स यूज करते हैं उनकी हार्वेस्टिंग करने के लिए. कई क्रूड ड्रग्स को, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल देखते हैं सीवीड्स का. सीवीड्स जो कि समुद्र के किनारे शैलो एरियाज में हमें मिलता है, किनारे किनारे पे, तो लॉन्ग हैंडेड फॉक यूज करते हैं. इन द सेम वे मोवर्स यूज करेंगे पेपरमिंट और स्पेयरमिंट के लिए, या जस्ट लाइक घास काटने वाली मशीन आपने देखी है, तो पेपरमिंट स्पेयरमिंट्स के लिए हम इसको हम क्या बोलेंगे, मोवर्स, MOWERS. देन पेपरमिंट हो गया, स्पेयरमिंट हो गया. देन फेनल, कोरिएंडर, धनिया, सौंफ, कैरावे के लिए, इनके फ्रूट्स अलग करने के लिए हम इसको थ्रेशिंग करेंगे और बीट करेंगे फ्रूट्स को विनोइंग से, छान लेंगे इसको बेसिकली. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक हार्वेस्टिंग के बाद आपने एक और पॉइंट याद रखना है, ड्राइंग का. अब सुखाने के भी अलग अलग मेथड्स हैं क्रूड ड्रग्स को. दो मेथड यूज करेंगे हम, एक तो सिंपल नेचुरल मेथड जिसमें कि सन ड्राइंग, या तो धूप में सुखाएंगे या तो शेड में सुखाएंगे, छाया में. और आर्टिफिशियल मेथड्स में हम ड्रायर यूज करते हैं, जैसे अलग अलग तरह के ड्रायर्स हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर और स्प्रे ड्रायर्स. तो नेचुरल ड्राइंग, sun drying, in case of the natural drying it may be either sun or in the shade, whereas the artificial drying by means of artificial methods such as a tray, vacuum and the spray dryers. So this is example of tray dryers. This is large scale spray dryer. In the industry we are using the spray dryer. Again vacuum dryers are used in the large scale industry. Next is the another important term is the garbling. Garbling क्या है, कई बार हम ड्रग को ड्रेसिंग देते हैं ताकि वो मार्केट में इजीली प्रोडक्ट हमारा जा सके. तो द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन द क्रूड ड्रग फॉर द मार्केट आफ्टर ड्राइंग, ड्राइंग के बाद इज द गार्बलिंग. दिस प्रोसेस इज डिजायर्ड व्हेन द सैंड, dirt or the foreign organic matter of the same plant not constituting drugs are required to be removed. अगर उस प्लांट के अंदर जो क्रूड ड्रग हमने कलेक्ट की है ड्राई करने के बाद, अगर कोई भी किसी भी तरह का डर्ट रह जाए
या सैंड रह जाए या उसी प्लांट को कोई और पार्ट उस ड्रग में स्टिक हो जाए, जिसको हम एक्सट्रेनियस मैटर या फॉरेन मैटर बोल सकते हैं, उसको रिमूव करेंगे हम, दैट इज नोन एज द ड्रेसिंग और गार्बलिंग। नेक्स्ट इज अबाउट द पैकिंग। तो हर एक चीज को अलग अलग तरीका है पैक करने का, जैसे हम एलो को पैक करते हैं गोट स्किन में। नेक्स्ट एग्जांपल इज द कोलोफोनी को पैक करने के लिए, जो कि एक रेजिन कंटेनिंग ड्रग है, या बाल्सम ऑफ टोल्लू को पैक करने के लिए वी आर यूजिंग द केरोसिन टिन्स। आई होप यू रिमेंबर दिस इज द कोलोफोनी रेजिन। तो इसको पैक करने के लिए हम केरोसिन टिन्स का यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज द केरोसिन टिन्स, हम इसको यूज करेंगे। अब हींग को पैक करने के लिए बेसिकली इट इज स्टोर्ड इन द, स्टोर करने के लिए वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, ताकि इसमें से लॉस ना हो वोलेटाइल ऑयल का। कोड लिवर ऑयल के लिए इट शुड बी स्टोर्ड इन सच कंटेनर विच विल नॉट इफेक्ट द सनलाइट, मतलब सनलाइट से ये खराब हो सकता है ऑयल, इसलिए हमें एम्बर्ड कलर बॉटल्स में उसको पैक करना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिनेमन बार्क इन द फॉर्म ऑफ द क्विल्स। इसको क्विल्स की फॉर्म में हम पैक करेंगे, एक के ऊपर एक रोल करेंगे। सो दिस इज दी सिनेमन स्टिक। तो एक के ऊपर इसको हम रोल करते जाएंगे ताकि ये इजीली पैक हो जाए। और अगर आपको रूट या सीड्स अदर ड्रग को पैक करना है, हम गनी बैग्स यूज कर सकते हैं, पॉलीथिन में भी हम उसको पैक करते हैं। दीज आर दी गनी बैग्स। एक बार ओवरव्यू लें, कलेक्शन में हमने जनरल मेथड देखिए कि किस पार्ट को, प्लांट के किस पार्ट को किस समय कलेक्ट करना है, हार्वेस्ट करना है, ड्राइंग के मेथड्स देख लिए, और थोड़ा बहुत हमने पैकेजिंग के बारे में भी देख लिया। अब लास्ट टॉपिक इसमें हम 5 मिनट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली डील कर रहा है फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन हमने कर लिए, कल्टीवेशन कर लिया, और कलेक्शन के कुछ एक टेक्निक्स हमने देख ली कि किस तरह हमने ड्रग को कलेक्ट करेंगे, जिसमें हमने कलेक्शन टाइम देखा अलग अलग प्लांट पार्ट्स का। ओके, तब इसमें एक अनदर कंपोनेंट आता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस टॉपिक इज द स्टोरेज अबाउट द क्रूड ड्रग्स। तो क्रूड ड्रग्स को स्टोर करना बहुत जरूरी है। जब भी हमारा वेयर हाउस की बात होगी, स्टोरेज कंडीशंस की बात होगी, तो इट शुड बी रोडेंट फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए। हमें पता है कि डिजिटल स्लीव को अगर स्टोर करना है तो मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा किसी भी क्रूड ड्रग को, अगर वो ड्राई आपने की है तो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, कोड लिवर ऑयल को स्टोर करना है अगर आपको, अब इस कोड लिवर ऑयल को किससे खतरा है? लाइट से। तो हमें इसको इस कंटेनर में डालना है जिसमें कि इसको हम इजीली स्टोर कर पाए, या इस फॉर्मुलेट को इस तरह फॉर्मुलेट करना है कि वो उसे लाइट से, फोटो ऑक्सीडेशन जिससे हम बोल रहे हैं, लाइट से कोई नुकसान ना हो। तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर हमें यूज करने हैं इन चीजों के लिए। नेक्स्ट, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर हम फिक्स्ड ऑयल के लिए भी यूज करेंगे। अब कई फार्मास्यूटिकल्स को हमें हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर में डालना पड़े। जस्ट रीड दिस लाइन, द कॉस्टली फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, फाइटोफार्मास्यूटिकल मतलब जो प्लांट से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व एट द रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर इन वेल क्लोज कंटेनर। एक्चुअली फाइटोफार्मास्यूटिकल एक डिफरेंट कंसेप्ट है, उसमें 4 कम से कम फाइटो इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव कंपाउंड्स होने चाहिए, दैट इज द फाइटोफार्मास्यूटिकल। वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें, कई कॉस्टली फाइटोफार्मास्यूटिकल्स हैं, उसे हमें रेफ्रिजरेशन कंडीशन भी देने पड़ सकती है। Small quantities of the crude drug should be readily stored in the airtight, moisture-proof and light-proof container such as tin cans, covered light tins and ambered glass container. Very simple. बिल्कुल जनरल अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है, तो ये आपको अपने आप करना है। बिल्कुल सिंपल है। स्टोरेज को किस तरह आपने मेंटेन करना है, किस तरह आपको प्रिजर्व करना है अपने क्रूड ड्रग्स को। वुडन बॉक्सेस एंड द पेपर बैग शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। इनको हम यूज कम से कम करेंगे। सो दिस इज अबाउट द स्टोरेज ऑफ द क्रूड ड्रग्स। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो एक जनरल सी मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द मेडिसिनल मटेरियल शुड बी वेल एरिएटेड, ड्राई एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, and when necessary be supplied with the air conditioning and humidity control equipment are also used. हमें जो भी अपने क्रूड ड्रग्स है उनको रोडेंट से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है। द फ्लोर शुड बी, उस वेयर हाउस, उस स्टोर रूम का फ्लोर कैसा होना चाहिए? शुड बी टाइडी विदाउट क्रैक्स एंड इजी टू क्लीन। उसमें किसी तरह के क्रैक्स नहीं होने चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, इजी टू क्लीन होना चाहिए। मेडिसिनल मटेरियल शुड बी स्टोर्ड ऑन द शेल्फ विच कीप द मटेरियल अ सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स। तो दीवार से सटा के किसी चीज को नहीं रखना, आपने दीवार से दूर उसको रखना है ताकि उसमें किसी तरह का मॉइस्चर ना जाए। Then continuous in process quality control measures should be implemented to eliminate the substandard material. तो आपने बीच में भी क्वालिटी कंट्रोल चेक्स भी रखने हैं और कंटेमिनेशन देखने की, अगर आपकी ड्रग खराब हो रही है तो आपको उसको प्रॉपर प्रोसीजर करके उसको फिर से ठीक करना है, या उसको अगर बिल्कुल खराब हो चुकी है तो आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। प्रोसेस्ड मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी पैक्ड इन अ क्लीन ड्राई बॉक्सेस और bags and other container in accordance with the
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर एक चीज का एसओपी आपने फॉलो करना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे हम बोलते हैं, उसी एसओपीज को मेंटेन करते हुए आपने ड्रग्स को वेयर हाउस में स्टोर करना है। सो आई होप नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर, दैट इज cultivation, collection and the factor affecting the cultivation of the medicinal plant. Yes, in the end I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So this video is prepared only for the education purpose. किसी भी तरह का commercialization या इस वीडियो का मकसद पैसा कमाना नहीं है। And I acknowledge all the sources, जो भी मैंने चीजें यूज की है मैं उन सबको acknowledge करता हूं। I respectfully acknowledge all the sources that I have used to prepare this video. So thank you very much for your valuable time. See you in the next lecture.